آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. پرامن ماحول میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر الیکشن ملازمین رہے الرٹ. ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے جائزاتی میٹنگ میں دی ہدایت. سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ پر الیکشن سے متعلق دکھائی جانے والی خبروں پر باریکی سے نظر رکھنے کا بھی انہوں نے دیا مشورہ. ریاستی وزیر اتل ساوے نے اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے داخل کیا اپنا نامینیشن فارم. مہایوتی میں شامل سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین و ورکرز بھی تھے اس وقت موجود. گزشتہ 10 سالوں میں اپنے حلقہ انتخاب میں کیے گئے ترقیاتی کام ہی ان کی جیت کے لیے اس بار بھی ہے ضامن، کہا اتل ساوے نے. بالآخر مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد سینٹرل سے اپنے امیدوار کا نام کر دیا ظاہر. سابق کارپوریٹر و گروپ لیڈر ناصر صدیقی کو ٹکٹ دیے جانے سے پارٹی ورکرز میں جشن کا ماحول. ناصر صدیقی کے رابطہ آفس پر امٹ پڑی ان کے حمایتیوں کی بھیڑ. اور ناریگاؤں علاقے میں مسلم قبرستان کے لیے زمین دیے جانے کے مطالبے پر بھارت مکتی مورچہ کی جانب سے نکالا گیا جنازہ مورچہ، مگر انتظامیہ کی جانب سے الیکشن کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کا تیقن دیے جانے کے بعد واپس لے لیا گیا احتجاج. خبریں تفصیل سے. پرامن ماحول میں غیر جانبدارانہ الیکشن کروانے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر افسران و ملازمین چاق و چوبند ہو جائیں. یہ ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے متعلقہ افسران و ملازمین کو دی. اس میٹنگ میں ضلع کلکٹر کے علاوہ پولیس کمشنر پروین پوار، رورل ایس پی ڈاکٹر ونے کمار راٹھوڑ، ایڈیشنل ایس پی سنیل لانجیوار، ڈپٹی کمشنر آف پولیس پرشانت سوامی، RDC ونود کھیرولکر، الیکشن ریٹرننگ آفیسر چیتن گراسے، برجیش پٹیل اور وینکٹ راٹھوڑ کے علاوہ دیگر افسران ذاتی طور پر شریک تھے، جبکہ ضلع کے تمام پولیس اسٹیشنز کے افسران اور دیگر تمام اسمبلی حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میٹنگ میں شرکت کی. اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ضلع بھر میں حکم امتناع نافذ ہے، لہذا اس پر سختی سے عمل کیا جائے. تمام شعبہ جات تال میل کے ساتھ کام کریں. ضلع کلکٹر نے سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے الیکشن سے متعلق دی جانے والی خبروں پر باریکی سے نظر رکھنے کی ہدایت بھی متعلقہ افسران کو دی. اسی طرح پولیس کمشنر پروین پوار نے بھی حاضرین کی مختلف پہلوؤں پر رہنمائی کی. اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد وسط میں ووٹرز میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مختلف سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں، جن میں اسکولی طلبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جگہ جگہ ریلیاں نکال کر ووٹرز کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس ضمن میں وسطی حلقے کے علاقوں میں نکالی گئی طلبہ کی ریلی میں نبھائیں گے ووٹنگ کی ذمہ داری، ہر ایک نر اور ہر ایک ناری، اس طرح کے نعرے دیے گئے. اسی طرح طلبہ کے سرپرستوں کے اجلاس منعقد کیے گئے اور انہیں الیکشن کا دن، تاریخ اور پولنگ بوتھ و دیگر امور پر رہنمائی کی گئی اور لازماً ووٹ ڈالنے کی تلقین کی گئی. مضمون نویسی کے مقابلے لیے گئے جس میں مضبوط و مستحکم جمہوریت کے لیے ووٹنگ کی ضرورت اور رائے دہی کا کردار. ڈرائنگ مقابلوں میں پاور آف ون ووٹ، ووٹ فار فیوچر، رائے دہی کی اہمیت اور مستقبل کے عنوان پر تصاویر، پوسٹرز میں رنگ بھرنا جیسی سرگرمیاں شامل تھیں. اسکولوں کے چھوٹے بچوں نے ٹی وی سینٹر چوک، سڈکو N9 کے علاقوں میں پتھ ناٹک پیش کیے. ووٹنگ بیداری سے متعلق سرگرمیوں کے انعقاد میں شاردا مندر، سرسوتی بھون میں سویپ کے افسران سویتا مڑے اور تیجسوینی دیسلے نے پروگرام منعقد کیے. اسی طرح میونسپل اسکول کراڑپورہ نمبر 1، کراڑپورہ نمبر 3، N11 سڈکو، ہرسول CBSE چیلی پورہ کے طلبہ نے اس بیداری پروگرام و سرگرمی میں شاندار طریقے سے حصہ لیا. یہ تمام سرگرمیاں 107 سینٹرل کے نوڈل آفیسر سنجو سونار، الیکشن آفیسر وینکٹ راٹھوڑ و انکش پاڈری کی رہنمائی میں انجام دی گئی. اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے مہایوتی کی جانب سے BJP کے امیدوار اتل ساوے نے آج اپنا نامینیشن فارم داخل کیا.
नाजरीन, महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे इससे कबल 2 मरतबा असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से MLA मुंतखब किए जा चुके हैं और अब तीसरी मरतबा उन्हें बीजेपी ने औरंगाबाद मशरिक से अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जिन्होंने जालना रोड पर वाक़ सेंट फ्रांसिस स्कूल में कायम करदा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप, NCP अजीत पवार ग्रुप, RPI आठोले ग्रुप, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी और रैत क्रांति संगठन के ओहदेदारान व वर्कर्स भी उनके साथ मौजूद थे। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में जो तरक्याती काम करवाए हैं, उसकी बदौलत इस बार भी शहरियान उनके हक में वोट करेंगे और इस बार भी वो भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करवाकर अपनी हैट्रिक करेंगे। उनका कहना है कि शहर में पानी का मसला संगीन हो चुका था, मगर अब बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा और जल्द ही शहरियान को 24 घंटे पानी फराहम किया जा सकेगा। इसके लिए हुकूमत ने ठोस कदम उठाए हैं। यही नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की कोशिशों से शहर में टोयोटा, किर्लोस्कर जैसी मारूफ कंपनियां सरमायाकारी कर रही हैं और बहुत जल्द उनके यूनिट यहां शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद बेरोजगारी का मसला भी बड़ी हद तक खत्म हो जाएगा और नौजवानों को रोजगार हासिल करने के लिए अब दूसरे मकामात पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने महायुति हुकूमत के काम गिनाते हुए ये भी कहा कि उनकी हुकूमत ने सड़कों की आवाम का देरीना मसला लीज होल्ड हल करते हुए उसे फ्री होल्ड करने का भी फैसला किया है, जिसका माली फायदा यहाँ की आवाम को मिल पाएगा। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, शिरीष बोरारकर, राजेंद्र जंजाल, अभिजीत देशमुख, अनिल मकरिये, शिवाजी दांडगे, लक्ष्मीकांत थेटे, जालेंदर शेंडके, दामुअन्ना शिंदे, राजवान खेड़े, विवेक राठौड़, दीपक ढाकने, हर्षवर्धन कराड़ और लक्ष्मण शिंदे के अलावा दीगर सभी जमातों के सियासी कायदीन व ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 2014 आणि 2019 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा अधिकृत उमेदवार म्हणून मी निवडणूक लढलो। दोन्ही वेळेस मला महायुतीच्या आमचे सर्व घटकांनी मला निवडून दिलं आणि मला सांगायला आनंद होतो की 14 आणि 19 मध्ये सर्व छत्रपती संभाजीनगरच्या नागरिकांच्या वतीने मला जो आशीर्वाद मिळाला, त्यामुळे मी एक हिंदू आमदार म्हणून निवडून येऊ शकलो। आणि आज मला सांगायला पुन्हा एकदा आनंद आहे की मला महायुतीच्या सर्व नेत्यांनी, एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील किंवा अजितदादा पवार साहेब असतील, यांनी माझ्यावर विश्वास टाकून मला तिसऱ्यांदा उमेदवारी दिली आहे आणि मला नक्कीच खात्री आहे की 10 वर्षात या छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकासासाठी मी अनेक जे प्रश्न प्रलंबित होते, मग तो रस्त्याचा प्रश्न असेल तर जो 700 कोटी रुपये रस्त्यासाठी वेगळ्या माध्यमातून आणले, आज कचऱ्याचा प्रश्न होता, त्यासाठी जो 115 कोटी रुपये सरकारकडून मंजूर करून आणले, आज आपल्याला माहिती असेल तर पाण्याचा जो अतिशय गंभीर प्रश्न होता, त्यासाठी पण आम्ही 2019 मध्ये 1680 कोटी रुपयाची योजना मंजूर करून आणली होती आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून त्यालाही पुढे अमृतमध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कराड साहेबांनी 1000 कोटी रुपये मिळवून दिले आणि आमची 1700 कोटीची योजना पुढच्या 3 महिन्यात सगळ्यांना मुबलक पाणी मिळणार। त्याच पद्धतीने ह्या शहरामध्ये अनेक युवक हे बेरोजगार आहेत। ह्या गोष्टीचं लक्षात घेऊन आम्ही मान्य देवेंद्रजींच्या ज्यावेळेस ते जपानला गेले होते त्यावेळेस त्यांना सांगितलं होतं की साहेब एक मोठा उद्योग इकडे यायला पाहिजे आणि कोई उद्योग इकडे आल्याशिवाय या शहराचा विकास होणार नाही। मला सांगायला आनंद होतो की 52,000 कोटीची जो गुंतवणूक ह्या शहरामध्ये होते। आथर असेल, GSW असेल, पिरामल असेल, कॉस्मो असेल किंवा टोयोटा किर्लोस्कर असेल, गुंतवणूक या शहरात होते आणि त्या माध्यमातून जवळजवळ 25 ते 30,000 युवक यांना नौकऱ्या उपलब्ध। असेंबली इलेक्शन में औरंगाबाद मगरिब और औरंगाबाद सेंटर से महायुति के उम्मीदवार संजय शिरसाट और प्रदीप जायसवाल के तशहीरी दफ्तरों का इफ्तिताह आज अमल में आया। संजय शिरसाट के तशहीरी दफ्तर के इफ्तिताह की तकरीब के मौके पर महायुति में शामिल पार्टियों और शिवसेना शिंदे गट के कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर शिरसाट ने कहा कि प्रचार दफ्तर दरअसल कारकुनान और चुनाव में काम करने वाले अफराद के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी ताकत का मुजाहरा तो असल में 27 और 28 तारीख को होगा, जब उनकी हिमायती जनता रास्तों पर उतरकर उनकी हिमायत का इजहार करेगी। इस मौके पर संजय शिरसाट ने इलेक्शन और दीगर पार्टी उमूर पर भी रोशनी डाली। आज माझ्या कार्यालयाचं उद्घाटन केलं
निवडणुकीच्या दरम्यान कार्यकर्ते जे येतात त्यांना एक सेंटर पॉईंट ज्याला म्हणतो आपण, त्या पद्धतीने फक्त कार्यालयाचं उद्घाटन होतं. इथं कोणतंही शक्ती प्रदर्शन नव्हतं. शक्ती प्रदर्शन आम्ही 27 किंवा 28 तारखेला करू. त्यावेळेला जनता कशी येते रस्त्यावर ते तुम्हाला पाहायला मिळेल. गेली 15 वर्ष या मतदारसंघामध्ये जे काही कामं केलेली आहेत आणि लोकांचा असलेला कनेक्ट तुम्ही पाहाल, यातला एकही चेहरा अनोळखी नव्हता. तो आपल्यातला होता, माझा होता, एकमेकाला भेटणारा होता. म्हणून हे सर्व लोक जेव्हा पाठीशी उभे राहतात त्या टायमाला आपला विजय हा निश्चित असतो. भाड्याने लोक बोलवण्याची जी काही प्रथा सुरू झालेली त्याला हे चोख प्रत्युत्तर आहे. इसी तरह सेंट्रल हलके से महायुति शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल के तशरीह दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर भी महायुति के हिमायती पार्टियां शिवसेना शिंदे ग्रुप, भाजपा, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, आठवले ग्रुप और रैत क्रांति के कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे. इस मौके पर उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल ने इलेक्शन के प्रचार और तरीक़ेकार पर रोशनी डाली और कारकुनान को अहम हिदायत दी. इस तकरीब में राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार, रियासती वजीर अतुल सावे, बीजेपी शहर व जिला सदर शिरीष बोराड़कर, पार्टी जिला सदर संजय ठोकड़, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के कारगुजार सदर क़य्यूम शेख व दीगर पार्टियों के ओहदेदारान व कारकुनान भी शरीक थे. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली हल्क़ा इंतखाब औरंगाबाद सेंटर से साबिक़ कारपोरेटर व ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी को उम्मीदवारी दी गई है. जैसे ही उनके नाम का ऐलान किया गया, पार्टी वर्कर्स ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की. नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्रोग्राम जाहिर किया था, जिसके मुताबिक 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया और 22 अक्टूबर ही से नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया. जहां इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वहीं सभी सियासी जमातें और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारियां जंगी पैमाने पर करने लगे हैं. महायुति और महाविकास आघाड़ी ने तो असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से अपने उम्मीदवार जाहिर कर दिए थे. इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी ने इलेक्शन प्रोग्राम के जाहिर होने से पहले ही इस हल्के से अपना उम्मीदवार तय कर दिया था. मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इलेक्शन से कबल पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सिर्फ 5 नामों का ऐलान किया था, मगर उनमें से किसे किस हल्के से उम्मीदवारी दी जाएगी इस बात की कोई वजाहत नहीं हुई थी. चूँकि असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से साल 2014 में MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की थी, मगर 2019 के इंतखाबात में इस हल्के से शिवसेना के उम्मीदवार की हैसियत से प्रदीप जायसवाल रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे. उस वक्त शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे, मगर इस मर्तबा शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है. एनसीपी भी 2 धड़ों में तकसीम हो गई है. शिवसेना शिंदे ग्रुप, एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी महायुति के नाम से मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ग्रुप, एनसीपी शरद पवार ग्रुप और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के नाम से इंतखाबी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं. असेंबली इंतखाबात में 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने अपने अलहदा तौर पर इलेक्शन लड़ा था, जिसका फायदा MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को मिला था, जिसके सबब असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसको उम्मीदवारी देती है इसका सभी को इंतजार था. आज MIM हाईकमान ने औरंगाबाद वस्त से साबिक़ कारपोरेटर व ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी के नाम का ऐलान औरंगाबाद वस्त के उम्मीदवार की हैसियत से किया और जैसे ही ये खबर शहर में पहुंची, नासिर सिद्दीकी के चाहने वालों और औरंगाबाद वस्त के वोटर्स की भीड़ उनके राब्ता ऑफिस पर उमड़ने लगी है. जो बहुत ही पुरजोश नजर आ रहे थे, उन लोगों ने नासिर सिद्दीकी को उम्मीदवारी दिए जाने पर जमकर जश्न मनाया. ढोल ताशों की गूंज में जमकर आतिशबाजी की गई और इस मर्तबा नासिर सिद्दीकी को इस इलेक्शन में कामयाब बनाने का उन लोगों ने अज़्म किया है. इस ज़मन में हमने बात की MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील से और औरंगाबाद वस्त से मजलिस के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी से. देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये फैसला सुनाया है कि औरंगाबाद से नासिर सिद्दीकी साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे. मैं नासिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. साथ ही साथ बहुत सारे और भी लोगों ने टिकट की ख्वाहिश जाहिर किए थे.
जिसमें समीर साजिद ने भी टिकट के लिए अपना दावा किया था। मुझे यकीन है कि मजलिस का जो भी फ़ैसला है उसको सभी लोगों ने कबूल करना चाहिए। यकीनन जब किसी एक के हक़ में फ़ैसला जाता है तो दूसरों को नाराज़गी होना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे इत्तेहाद का सबूत देते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेगी और मजलिस को यहाँ से कामयाबी दिलाएगी। ये खुशी का मौका है और मैं सिर्फ अच्छी बातें करना चाहता हूँ इस वजह से। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे दोबारा मौका नसीब फरमाया। उसके बाद मेरे तमाम कायदीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मेरे रहनुमा, मेरे लीडर इम्तियाज़ जलील साहब, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे तमाम कारपोरेटर्स और मजलिस के जितने पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता है, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आवाम का भी, जिन्होंने टिकट के लिए मेरे लिए हक़ में दुआएं भी की। और जिस तरह पिछले 2019 में यहाँ की जनता ने मुझे बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा था, लगभग 70,000 के करीब वोट दिए थे। अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ वोटों से जो रह गए थे, लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ आवाम से कि इंशाअल्लाह दोबारा वो मुझे मौका देंगे, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारा था। फिर से मैं मैदान अमल में डटा रहा, लोगों के लिए जो भी अपने से टूट पड़ता था तो टूटी फूटी कोशिशें की। और अगर मुझे आज पावर देती है जनता यहाँ की इंशाअल्लाह ताला, तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि उनके लिए दिन और रात बड़ी मेहनत से, लगन से जो है तो उनकी खिदमत को अंजाम दूंगा। और मैं जो है तो उनका एमएलए नहीं बल्कि उनका एक सिपाही बनकर जो है तो मैदान अमल में फिर से डटा रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आवाम की तमाम तबक़ात से, चाहे वो हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, मुसलमान हो, तमाम लोगों से यही अपील करूँगा कि एक अच्छे जो है तो इंसान को जो है तो आप भर भर के वोट दे और यहाँ से ऐसे लोग ऐसे चुनकर दे नुमाइंदा अपना जो शहर के लिए हित में सोचता है, ना कि जो है तो अपने बारे में सोचता है। ना वो हिंदू मुसलमान करता है और ना वो जातिवाद के ऊपर भरोसा करता है। डेवलपमेंट की खातिर शहर से यहाँ से हम लोग चुनकर जाना चाहते हैं। आवाम से ऐसी अपील करूँगा कि एक मरतबा आप मौका देके देखिए, आपको शर्मिंदा ना करूँगा ना, इंशाअल्लाह ताला आप एक मरतबा मुझे नाजरीन, असेंबली हल्के औरंगाबाद वस्त से शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार संजय शिरसाट महायुति की जानिब से इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार किशन चंद्र तनवानी महाविकास आघाड़ी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने साबिक कारपोरेटर जावेद कुरैशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज औरंगाबाद वस्त से नासिर सिद्दीकी के नाम का ऐलान किया है। इसी तरह से कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में रहेंगे, मगर असल मुकाबला महाविकास आघाड़ी, महायुति, VBA और MIM के उम्मीदवारों के दरमियान होने के आसार साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। इस दिलचस्प मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद और महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में एक बयान देते हुए कहा कि हमारी शिवसेना ही असल शिवसेना है और हमारी लड़ाई शिवसेना से नहीं बल्कि गद्दारों के साथ है, जिसमें हमारी जीत यकीनी है। मला वाटतं कोणी काही केलं तरी जनता ही महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहे, याचाच अर्थ ते सगळे हवेतूनच आहे आणि त्यांनी हवेतच राहावं अशा प्रकारच्या शुभेच्छा आमच्या आहे। आम्ही जमिनीवर जाऊ, काय प्रॉब्लेम नाही। गद्दार विरुद्ध निष्ठावंत आहे, शिवसेना विरुद्ध शिवसेना, शिवसेना तर आमचीच आहे, मान्य उद्धव साहेबांचीच आहे। बाकी गद्दाराविरुद्ध हा लढा राहणार आहे आणि मला वाटतं गद्दाराविरुद्ध लढा याच्यामध्ये निष्ठावंत जिंकतील। किंवा भाजप जी मोठे सीट निवडून आले ते सूज होती। बरेच लोक या निवडणुकीतून भारतीय जनता पार्टीला सोडून गेलेले आहेत। मग हर्षवर्धन पाटलाचं नाव घेता येईल, जे घाडगे आहेत आपले त्यांचं नाव घेता येईल। आता हे त्यात प्रताप पाटील, संजय पाटील यांचं सुद्धा नाव, जे भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आहे, आता 2 महिन्यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीकडून लढले होते। हे भारतीय जनता पार्टीच्या मनाने कधीच नव्हते, फक्त शरीराने होते आणि म्हणून मला वाटतं त्यांनी त्यांच्या घरात गेलेले ते आरोप करत असताना स्वतःकडे बघितलं पाहिजे। मी कोणाचं नाव घेणार नाही, पण आज या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं बघितलं तर कित्येक लोक सोशल मीडियावर सगळीकडे आलेले आहे। कित्येक लोक घराणेशाहीतून त्यांना तिकीट मिळाले, कित्येक खासदार होते, केंद्रीय मंत्री होते, किंवा कोणाचं निधन झालं असेल एखाद्या दुर्दैवाने, आता काही जिवंत असलेले लोक आहेत, त्यांचे मुलं बाळ, यांना सगळ्यांना तिकीट मिळतंय। मराठवाड्यात अनेक उदाहरणं आहे, महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणं आहे। त्यामुळं भारतीय जनता पार्टीचा हा घराणेशाहीचा आरोप मला असं वाटतं ज्या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टी लावते, आधी स्वतःच्या
घरात त्यांनी झाकून बघितलं पाहिजे. फक्त मेजॉरिटीने सगळ्या गोष्टी अतिशय सुस्पष्ट आणि क्लिअर झालेल्या आहेत. थोडे बहुत एक अर्ध कुठला विषय असेल तर तो फार आजच्या वर उद्या जाणार नाही अशा प्रकारची स्थिती आहे. महाविकास आघाडी, मग शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल, शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, संघटितरित्या एकत्रितरित्या मग तर सगळ्या उमेदवार, जागा वाटप हे सगळं जनतेसमोर आलेलं आहे. आता उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया सुद्धा सगळ्या पक्षांची जवळपास पूर्ण होत आलेली आहे. आणि या भ्रष्टाचारी सरकारला, या खोके सरकारला, या टक्केवारी सरकारला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी आम्ही सिद्ध झालेलो आहोत. नारेगांव इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दिए जाने के मतालबे पर भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से जनाजा मोर्चे का एहतमाम किया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद इस मामले को हल कर लिए जाने से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया की जानिब से तयक़ुन दिए जाने के बाद उन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। वाज़ेह है कि मज़कूरा बस्ती के साकिनान की जानिब से पिछले 4 साल से ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट की जाए। ताहम इस हसास मसले के हल को लेकर ज़िला इंतज़ामिया ने अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की, जबकि बस्ती के साकिनान को अपने मरहुमीन की तदफीन के लिए नहायत दुश्वारियों का सामना है। इस सिलसिले में भारत मुक्ति मोर्चा की जानिब से 25 अक्टूबर को जिला कलेक्टर को एक अर्जी दी गई थी और इंतबाह दिया गया था कि मसले का फौरी हल न किया गया तो वो बस्ती के साकिनान को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर जनाजा मोर्चा निकालेंगे। दरी असना दरख्वास्त गुजारों को MIDC पुलिस थाने की जानिब से एक नोटिस देकर इंतबाह दिया गया था कि उनके एहतजाज और रास्ता रोको के सबब ट्रैफिक और शहर का लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर होने का ख़तरा है और इन दिनों शहरी हुदूद में इम्तनाई दिफा का नाफिज है, चुनांचे वो ऐसी कोई कार्रवाई न करें। लेकिन इस नोटिस के बावजूद भी मज़कूरा भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से इस जनाजा मोर्चे का एहतमाम किया गया, मगर इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें तयक़ुन दिया गया कि इस मामले पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से रहनुमाई की जाएगी और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन अलॉट करने की कोशिश की जाएगी, जिस पर उन लोगों ने अपना मोर्चा ख़त्म कर दिया। निकाला गया और इस बारे में बहुत दिनों से कोशिशें हो रही है। आज जो सरकारी महकमा से जो लेटर प्राप्त हुए हैं, आए हैं, उसके अंदर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आचार संहिता के खत्म होने के बाद बहुत जल्दी यानी तातड़ी उसके हम कार्रवाई करेंगे और ये भरोसा दिलाया है कि हम पॉजिटिव में ये सब काम करने जाएंगे। इस सिलसिले में हम पुलिस का जो बंदोबस्त प्रशासन जो है, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस मोर्चे को कामयाब बनाने में जो उनका किरदार हो सकता है और जो जितना वो सहायता दे सकते हैं वो सब उन्होंने की है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह जो प्रशासन के जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने लेटर जारी किया है, अभी हम इस मोर्चे को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन हम ये भी ऐलान इसके साथ में करते हैं कि जो टाइम आपने दिया है, अगर उस टाइम में वो काम नहीं हो सका तो हम ये मोर्चा इससे बहुत ज़्यादा तादाद के एतबार से और सिर्फ नारेगांव ही में नहीं होगा, वो मोर्चा शायद पूरे शहर औरंगाबाद में जाएगा और फिर वहाँ पर उस वक्त जो करना होगा उस लिए कि उस वक्त हम भी आज़ाद होंगे और आप भी हमारे लिए उसके अंदर जो सही रास्ते हैं वो बताएंगे, हम अपनी बात मनवाएंगे और हमको यकीन है कि उस वक्त फिर आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। आज दिनांक 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी नारेगाव येथील मुस्लिम बांधवांचा जो कब्रस्तान जागेचा प्रश्न आहे, या संदर्भात जो जनाजा मोर्चा नारेगाव येथे काढण्यात आला। आत्ताच माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी पत्र पाठवून अशी लेखी आश्वासन दिलेलं आहे की आचारसंहिता संपल्याच्या नंतर तातडीने, तसे त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश दिलेले आहेत की तातडीने कब्रस्तानची जमीन हस्तांतरित करण्याची कारवाई करावी। याबद्दल आम्ही जिल्हा प्रशासनाचे तसेच आजचा जनाजा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने जे सहकार्य केले
त्या पोलीस प्रशासनाचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि आज जो नियोजित मोर्चा होता जनाजा मोर्चा तो या ठिकाणी आम्ही स्थगित करत आहोत. पण प्रशासनाला हे देखील आम्ही सूचित करू इच्छितो की आचारसंहिता संपल्याच्या नंतर तात्काळ जर मुस्लिम बांधवांसाठी कब्रस्तानची जमीन वर्ग करण्यात नाही आली तर याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात औरंगाबाद शहरामध्ये आंदोलन केले जाईल. एवढे बोलतो आणि थांबतो. जय भीम जय महाराष्ट्र. म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गारखेड़ा और उस्मानपुरा इलाके में चलाए जाने वाले CBSE स्कूल के तलबा ने एक काबिल सताइश कदम उठाते हुए वृद्ध आश्रम और बाल सदन गृह जाकर वहाँ के मकीनों की दिवाली को रंगीन बनाने की कोशिश की और उनमें मिठाइयाँ व तोहफ़े तकसीम करते हुए उनके साथ दिवाली की खुशियाँ बाँटीं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE पैटर्न के स्कूल गारखेड़ा और उस्मानपुरा के स्कूलों में दिवाली की तकरीबात का अहतमाम किया गया. इन स्कूलों की जानिब से इस साल दिवाली सेलिब्रेशन के उन्वान से दोनों स्कूलों के सदर मुदर्रिस शशिकांत उवाड़े की रहनुमाई में तलबा में समाज के बुजुर्ग मुअम्मर अफराद और बेसहारा व लावारिस बच्चों से मुताल्लिक हमदर्दी व मोहब्बत पैदा करने और उन्हें बेहतर सुलूक फराहम करने के समाजी खिदमत के जज्बे को परवान चढ़ाने की गर्ज से तलबा को हिदायत दी गई कि वो अपने घरों से दिवाली के फराल यानी नाश्ते लेकर आएं. बाद-ए-अज़ां तलबा ने इन फराल को अपने हाथों ही से छोटे छोटे पैकेट तैयार किए और फिर ये पैकेट यहाँ से करीब वाक़े एक वृद्धाश्रम और गारखेड़ा स्कूल के तलबा ने मदर टेरेसा वृद्धाश्रम, इसी तरह उस्मानपुरा स्कूल के बच्चों ने अपने पैकेट बाल सदन ले जाकर वहाँ के बच्चों और बुजुर्गों को भेंट किए. इस खिदमत खल्क की अंजामदही के मौके पर तलबा के चेहरों पर निहायत खुशी के तासुर देखे गए. इस कार्य खैर की अंजामदही के लिए स्कूल के असातिज़ा और तलबा के सरपरस्तों ने भरपूर ताउन किया और इस काम पर तलबा को म्यूनिसिपल एजुकेशन शोबे के चीफ और डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे और मरकजी सदर मुदर्रिस संजू सोनार ने मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है. My school name is CSMC CBSE Pattern School गारखेडा. आज आपण सर्वजण हे सगळं फराळ आपल्या आजी आजोबांना व आपल्या मित्रांना देणार आहोत कारण की ते सर्व फार खुश होऊन जावे. हॅपी दिवाळी. थँक्यू. माझं नाव वीरेन विनोद गवळे. माझ्या शाळेचं नाव AMC CBSE पॅटर्न स्कूल. दिवाळीच्या निमित्त आम्ही आजी आणि आजोबाला फराळाची भेट देत आहोत. मला याचा खूप आनंद होत आहे. Good afternoon everyone. My name is Pradyumna Sumanarathi. My school name is CSMC CBSE Pattern School. Today we are going to give this food to young people or the people who needed this food, and we will share the food with others. Thank you. Happy Diwali. My name is Piyush Balkhande. Today my school name is CSMC CBSE Pattern School Gaithada. Today we are going to sharing some snacks to grandparents on the occasion of Diwali. I wish you all a very happy Diwali. टाकली राजाराय तालुका खुलदाबाद की तालिबा कुमारी आरती भागड़े को रियासती सतह के कुश्ती मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया है, जिस पर मज़कूरा तलबा का स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. नाजरीन, ये तालिबा यहाँ ज़िला परिषद स्कूल में तालीम हासिल कर रही है और उसे 14 साल उम्र के 50 किलो वजन के ज़मरे के रियासती सतह के कुश्ती मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया है. तालिबा कुमारी आरती भागड़े इससे कबल मराठवाड़ा सतह के मुकाबले में अव्वल मकाम हासिल कर चुकी हैं. इसके बेहतरीन खेल की सलाहियतों और कारकर्दगी को देखते हुए अब वो रियासती सतह का मुकाबला लड़ेगी. इस इंतखाब पर केंद्र प्रमुख बड़े सर ने उसका इस्तकबाल किया. इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस वसंत राठौड़, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर हारून पटेल ने भी आरती को खुसूसी मुबारकबाद पेश की और उसकी हौसला अफजाई की. इस तालिबा को कुश्ती के लिए तैयार करने में स्पोर्ट्स टीचर विवेक घुगे ने खुसूसी मेहनत की है. इस मौके पर उनका भी इस्तकबाल किया गया. ज़िला नांदेड़ के नायगांव और भोकर से महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारी दी है. इन दोनों ही असम्बली हलकों के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं.
नांदेड़ के इन दो असेंबली हलकों नायगांव और भोकर में नायगांव से मीनल खदगांवकर और भोकर से पप्पू उर्फ तिरुपति पाटिल महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मीनल खदगांवकर साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खदगांवकर की बहू हैं और वो जिला परिषद की रुकन भी रह चुकी हैं। उम्मीदवारी दिए जाने के बाद दोनों ही उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और अपनी जीत के यकीन का इजहार किया। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए जाने की भी इत्तला दी है। महाविकास आघाडीने मला नायगाव विधानसभेतून उमेदवारी देऊन माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवलेला आहे। आम्ही सर्व तयारीनिशी ही निवडणूक लढू आणि जिंकू असा आत्मविश्वास आम्हाला आहे। आमचे राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी, सोनियाजी गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुनजी खरगे, नानाजी पटोले, आमचे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेशजी चेनिथल, बाळासाहेबजी थोरात, विजयजी वडेट्टीवार, अमितजी देशमुख आणि शरदचंद्रजी पवार, उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे या सर्वांचं मार्गदर्शन आहे आणि महाविकास आघाडीच्या बाजूने जनतेचा कौल आहे। आम्ही या निवडणुकीला पूर्ण तयारीनिशी सामोरं जाऊ आणि जिंकू हा आत्मविश्वास आमच्या मनामध्ये आहे। वापसी की बारिश ने तालुका कन्नड़ में भी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इसी ज़िमन में नाचन बेल में किसानों के हुए नुकसानात के पंचनामे शुरू कर दिए गए। नाजरीन, वापसी की इस बारिश और तूफान में किसानों की तैयार फसलें तबाह हो गई थीं और किसान ऐन दिवाली के मौके पर फसलों से हाथ धो बैठे, जिसके सबब उन्हें भारी माशी मार पड़ी है। किसानों के हुए इन नुकसानात के पेश नज़र कन्नड़ के तहसीलदार विद्याचरण कड़ूकर के हुक्म पर नाचनबेल के इलाके में तलाठी जीजी खिल्लारे ने किसानों के बांध पर जाकर नुकसानात का मुआयना किया और पंचनामों की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर किसान शिवाजी थोरात, संजय पिंपड़े, कैलाश शेलके, सोमीनाथ देवी, गणेश शिंदे, विठल थोरात, राजेंद्र थोरात और कोतवाल विशाल निकम व दीगर मौजूद थे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से औरंगाबाद डिपो को भी इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की गई हैं, जो आवाम और मुसाफिरों की पहली पसंद बनने लगी हैं, जिसके सबब इस डिपो को हुकूमत की जानिब से मज़ीद 20 नई इलेक्ट्रिक बसेस मुहैया की जा रही हैं। नाजरीन, हमारे शहर के एसटी डिपो को वक्फे से इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की जा रही है। पहली मरतबा जो बसेस मिली थी वो पुणे रूट पर चलाई गईं और बाद ऐसा दूसरे टर्न में मिली इलेक्ट्रिक बसों को पैठन, जालना, बीड़, सिल्लोड जैसे रूट्स पर चलाया जा रहा है और अवाम बड़े शौक व इन्हमाक से इन बसों का सफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों को मिली अवाम व मुसाफिरीन की भरपूर तायीद व हिमायत के बाद अब हुकूमत की जानिब से मजीद 20 ई बसेस दी गई हैं। इस तरह अब हमारे शहर के बस डिपो में इन बसों की मजमूई तादाद 48 हो गई है। इस मरतबा दी गई 20 बसों में से 10 बसेस पिछली रात शहर में दाखिल हो चुकी हैं और 10 बसेस आज जुमा के रोज आने वाली थीं। इन इलेक्ट्रिक बसेस में से बीड़ रूट पर 5, नासिक शाहरा पर 6, शिरडी 2 और बकिया बसेस चिकली रोड पर चलाए जाने की मंसूबाबंदी इंतजामिया कर रहा है। इस तरह की इत्तला एसटी ज़राए से मौसूल हुई है। हिंगोली क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इलेक्शन सरगर्मियों के दरमियान 2 गाड़ियों की जांच के दौरान 1 करोड़ रुपयों से ज़ायद की मालियत जब्त की है। ज़राए का कहना है कि इस जीवन में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसकी बुनियाद पर शहर के बस स्टैंड इलाके में कार्रवाई की गई और कामयाब छापामारी के जरिए पुलिस ने 1,40,37,500 रुपयों की मालियत जब्त कर ली है। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पुलिस की जानिब से जा बजा चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। मुश्तबा गाड़ियों की जाँच की जा रही है, जबकि खुफिया जानकारी की बुनियाद पर शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर की गई 2 गाड़ियों की जाँच में एक गाड़ी से 1,26,87,1500 और दूसरी 4 व्हीलर गाड़ी से 13,50,000 इस तरह जुमला रकम 1,40,37,500 की मोटी रकम लोकल क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने जब्त कर ली है। बाद अज़ा ये रकम रूरल एसपी ऑफिस लाए जाने के बाद इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली है। ये रकम किस सियासी लीडर या उम्मीदवार के लिए ले जाई जा रही थी या किसी व्यापारी की मिल्कियत है, इस बाबत पुलिस जाँच कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुरअमन माहौल में गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर इलेक्शन मुलाजमीन रहे अलर्ट। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने जायजाती मीटिंग में दी हिदायत। सोशल मीडिया, अखबारात और दीगर ज़राए ब्लॉग पर इलेक्शन से मुताल्लिक़ दिखाई जाने वाली खबरों पर बारीकी से नजर रखने का भी उन्होंने दिया मशवरा।
ریاستی وزیر اتل ساوے نے اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے داخل کیا اپنا نامینیشن فارم. مہایوتی میں شامل سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین و ورکرز بھی تھے اس وقت موجود. گزشتہ 10 سالوں میں اپنے حلقہ انتخاب میں کیے گئے ترقیاتی کام ہی ان کی جیت کے لیے اس بار بھی ہے ضامن, کہا اتل ساوے نے. بالآخر مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد سینٹرل سے اپنے امیدوار کا نام کر دیا ظاہر. سابق کارپوریٹر و گروپ لیڈر ناصر صدیقی کو ٹکٹ دیے جانے سے پارٹی ورکرز میں جشن کا ماحول. ناصر صدیقی کے رابطہ آفس پر امٹ پڑی ان کے حمایتیوں کی بھیڑ. اور ناریگاؤں علاقے میں مسلم قبرستان کے لیے زمین دیے جانے کے مطالبے پر بھارت مکتی مورچہ کی جانب سے نکالا گیا جنازہ مورچہ, مگر انتظامیہ کی جانب سے الیکشن کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کا تیقن دیے جانے کے بعد واپس لے لیا گیا احتجاج. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.